جی جناب، ویلکم بیک. نظر ڈالتے ہیں ایک دفعہ پھر سیلاب سے ریلیٹڈ کچھ اپڈیٹس کے اوپر. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیر خارجہ، انہوں نے فوری طور پہ لوگوں کی، اقوام عالم کی، ڈونر ایجنسیز کی توجہ مبذول کرائی ہے پاکستان کی اس مشکل کی گھڑی پہ، یعنی انپریسیڈنٹڈ رینز کی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کا بیشتر علاقہ زیر آب ہے اور یقیناً اب لوگوں کی امداد کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے، تو انہیں اس طرف متوجہ کرایا لوگوں کو. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی خطیر رقم اس حوالے سے جمع ہو پائی ہے. آئیے سب سے پہلے اس کے حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ. دیا تمام کارروائیاں، کوششیں جاری ہیں کہ لوگوں کا خاص طور پہ بیرون ملک لوگوں تک اور ڈونر ایجنسیز تک پاکستان کی اس مشکل کے وقت کی لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچائی جائیں. اور یقیناً یہ ایریل ویو جو دیا گیا ہے تمام ہی ریپرزینٹیٹیوز کو، یہ بڑا اہم ہوگا، بیکاز سینگ از بلیونگ. جو خبریں آپ کے اور ہمارے پاس آ رہی ہیں، جو آپ اس ایبجیکٹ تکلیف کو لوگوں کی محسوس کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کتنی مشکل اور کتنی بڑی یہ تکلیف ان پہ آن پڑی ہے. لمبی لمبی قطاریں جی لوگوں کی نظر آ رہی ہیں جب وہ امداد کا جو سامان ہے اس کی ترسیل کے لیے، اس کو ریسیو کرنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، which is definitely something which is heart breaking. ایک دفعہ جی رک کرتے ہیں بلوچستان کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت شاہوانی صاحب جو کہ فارمر اسپوکس پرسن ہیں اور بلوچستان، ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. السلام علیکم لیاقت صاحب، بہت بہت شکریہ موجود ہونے کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم مختلف حوالوں سے آپ سے گفتگو پہلے بھی کرتے رہے ہیں، لا آرڈر کی سچویشن، لیکن خصوصاً اگر یہ جو سیلابی صورتحال ہے بلوچستان کی، اکثر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اس وقت پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا. آپ لوگوں کے پاس جب اپریل سے آنورڈز یہ اطلاعات موجود تھیں تو کیوں نہیں اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی گئی، اور کیا بنائی گئی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی توقعات سے زیادہ تباہی آئی ہے؟ جی لیاقت صاحب. ناٹ اونلی کرنٹ گورنمنٹ، صرف موجودہ حکومت کی بات نہیں بلکہ 2010-11 میں جو پاکستان میں بارشیں ہوئیں اور سیلاب آیا، اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے،
इन्वायरमेंटल साइंस के जो माहिरीन हैं उन्होंने फोरकास्ट करते हुए और रिपोर्ट्स में उन्होंने रिटर्न में ये शाया किया कि फ्यूचर में पाकिस्तान में इससे भी शदीद तरीन फ्लड्स आएंगे और हुकूमतों को तैयार रहनी चाहिए, लेकिन किसी ने भी इसको दरखोर एहतना नहीं गर्दाना और मौजूदा सूबाई और जो वफाकी हुकूमत है वो इस गुनाह में तो जरूर शामिल है, लेकिन 2010-11 के बाद 12 सालों में जितनी भी सूबाई और कौमी हुकूमतें आई हैं वो सब इसके सजावार हैं, गुनहगार हैं, वो मुजरिम हैं और वो जिम्मेदार हैं इस हैवी जो लॉसेस हुए हैं, लोगों के इमलाक चले गए, उनकी कीमती जाने जाया हो गए और जो अब तक बता रहे हैं कि पूरे मुल्क में 1000 के करीब लोगों की शहादतें हुई हैं, बलूचिस्तान में 250 के करीब बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये 20% भी जो अमवात हुए हैं वो नहीं है, ये तो फ्लड में लोगों की लाशें बह गई हैं, मड में फंसे हुए हैं। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, आम हालात में वहां तक एक्सेस इतना आसान नहीं है और इस फ्लड्स में तो लोग अब तक वहां पर पहुंचे ही नहीं है और न जाने कहीं गुना ज्यादा जो डेटा हमारे सामने है उससे ज्यादा लोगों के अमवात वाकई हुए हैं। बड़ा अफसोसनाक हुआ है। तो मैं दोहराऊंगा कि 12 सालों में जब एक्सपर्ट्स ने बता दिया था, माहिरीन ने, कि मुस्तकबिल में ऐसे सैलाब आएंगे और इससे ज्यादा शदीद तरीन सैलाब मुस्तकबिल में आएंगे इस मुल्क में और नुकसान होगा। और अभी भी यही अंदेशा दिया जा रहा है। लियाकत साहब, अगर मैं कते कलामी की माफी, लेकिन थ्रू आउट आपने कहा कि सिर्फ मौजूदा सेटअप नहीं, गुज़िश्ता 12 साल 15 साल से जब ये सारी अपडेट्स मौजूद थी, इसके बावजूद भी कोई हिकमत अमली, मरबूत में हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही, उसका फुकदान है। मुझे ये बताएगा कि इस वक्त जो रिलीफ एफर्ट्स जारी हैं, हमने देखा कि मौजूदा सीएम बलूचिस्तान ने इस बात पर खफगी का इजहार किया है कि उस तरह कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हो रही है। आपकी क्या इसके बारे में राय है? आपने क्या ऑब्जर्व किया है? क्या बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन तक रिलीफ पहुंच रहा है? उनकी इमदाद की जा रही है इस वक्त? जिस स्केल पे तबाही है उस पे हाउ इफेक्टिव हैव दीज रिलीफ एफर्ट्स बीन? गैर मामूली सूरत हाल है, लेकिन उसको मामूल के अंदाज में, मामूल के मुताबिक उसको टैकल किया गया और मामूली से जो रिलीफ जो ऑपरेशंस है वो किए अब तक। और यही वजह है कि बहुत ज्यादा कीमती जानें ज़ाय हुई। जिस तरह मुस्तैद अंदाज में प्रॉम्प्ट होकर गवर्नमेंट्स को सामने आना चाहिए था, वो जो संजीदगी है वो हमें नजर नहीं आया। और बलूचिस्तान में तो अवाम और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों ही रिलीफ के लिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ देख रहे हैं। अपने पांव पे तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो अब तक खड़े ही नहीं हुए। तो और अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में फिर ये भी है कि जो वेलफेयर के इदारे हैं बलूचिस्तान में वो भी नहीं है। एक आध वेलफेयर के इदारे जो कराची से आके ईदी चीपा थोड़ा सा उन्होंने यहां पर जरूर मदद किया। अल खिदमत फाउंडेशन ने, ये भी अनफॉर्चुनेट कि बलूचिस्तान में कोई वेलफेयर के इस तरह इदारा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी ये जिम्मेदारी है कि किसी भी आफत में, मुसीबत में एज ए इंस्टीट्यूशन वो आगे बढ़ के लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का 1% भी किरदार नजर नहीं है। और इसी तरह गवर्नमेंट जो रिलीफ लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही मामूली है, वो बहुत ही कम है। अब फेडरल गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, एक तो 10 बिलियन रुपीज किए और इंटरनेशनल डोनर से जो पैसे आ रहे हैं उसके आसरे पे अगर प्रॉपर एक मैकेनिज्म के तहत लोगों को बर वक्त रिलीफ फराहम किया जाता है। रिलीफ इतना मुश्किल भी नहीं, यानी गवर्नमेंट हम कह लेते हैं कि 65 अरकान असम्बली है इस वक्त, जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट सब एक ही पेज पे है। तो हर एक रुकन असम्बली अगर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके एक्टिव होकर लोगों को वो मदद फराहम करते तो लोगों को रिलीफ भी मिलता और कैजुअलिटीज भी कम होते। आपने कहा कि गैर मामूली सूरत हाल है, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। एक तो शदीद किस्म की तबाही आई है, लेकिन जो हमारा मैकेनिज्म है वो आप कह रहे हैं कि बेयर मिनिमम है, या जिस तरह रिलीफ का एक रोजमर्रा का मामूलाती तरीका होता है उस तरह ये रिलीफ प्रोवाइड की जा रही है। मुझे ये बताइएगा कि इस सूरत हाल में सैलाब मुतासरीन की मदद कैसे की जा सकती है? ना जब आप आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव सोल्यूशंस की बात करते हैं और उसके बारे में आई एम श्योर कि आपकी एक स्टडी है, एक एक्सपीरियंस है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह सैलाब मुतासरीन की खुसूसन बलूचिस्तान में इस वक्त मदद की जाए जो अभी भी आपको लगता है कि मिसिंग है?
देखिए, रिलीफ के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं। यहाँ पर जब कोविड पैंडेमिक आया, वो भी बहुत बड़ी आफत थी जी। उस वक्त एनसीओसी फेडरल लेवल पर स्टैब्लिश किया गया और बलूचिस्तान में उसी मॉडल को देखते हुए यहाँ पर बीसीओसी का इदारा कायम किया गया और इन इदारों ने बड़ा बेहतर अंदाज में काम किया। और बीसीओसी जो है बलूचिस्तान में जितने भी रेलेवेंट इदारे हैं, जो जैसे पीडीएमए है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ कोऑर्डिनेटेड था और इस कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के जरिए हमने बेहतर अंदाज में उस वक्त बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत की। लेकिन कोविड का जब फेज गुजर गया तो उसको डी नोटिफाई कर दिया गया। इसी तरह एनसीओसी का इदारा सूबा और वफाक में जितने भी इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ से वैक्सीन वगैरह आते थे, इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट आते थे, उसको कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के जरिए प्रॉपर ट्रिकल डाउन एक मैकेनिज्म के तहत लोगों तक पहुंचाया जाता। उससे काफी बेहतरी और बेहतर नताइज सामने आए। और मैंने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था जिसमें इस जरूरत का इहादा किया था इस अमर का कि एनसीओसी को बहाल किया जाए। तो उसी मॉडल पे फेडरल गवर्नमेंट ने अब एक फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन के लिए एक इदारा उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि बीसीओसी का इदारा उसको नोटिफाई करें या उसी मॉडल पे कोई एक इदारा बनाए और उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इसको मेक श्योर किया जाए। और हम देख रहे हैं जी और हम देख रहे हैं कि तकरीबन जून जुलाई के महीने से बलूचिस्तान इस कुदरती आफत से निबर्द आजमा है एंड स्टिल आज सितंबर शुरू हो चुका है और हम ये बात कर रहे हैं कि एक सेंट्रल कमांड यूनिट बनना चाहिए। ये आपकी तजावीज मौजूद है। दिस इज ऑलमोस्ट कॉमन सेंसिकल टू ऑल ऑफ अस, लेकिन इस वक्त नजर ये आ रहा है कि एक तरह से फलाही इदारों और लोगों के रहमो करम पे मुतासरीन को छोड़ा गया है। आपने खुद जैसे कहा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो शायद मुल्क के दूसरे इलाकों में है, वहां पे फलाही तंजीमें मौजूद हैं, बलूचिस्तान में हमारे पास ऐसा कोई उस तरह का उतना पैरेलल उतना फाल सिस्टम मौजूद नहीं है। तो इस वक्त रिलीफ की कार्रवाइयां कैसे आगे बढ़ी हैं और इसमें फलाही तंजीमों का, इदारों का आप क्या हिस्सा देख रहे हैं? बदकिस्मती तो यह है कि बलूचिस्तान में फलाही इदारों के रहम करम पे हम रहते हैं, वो भी बहुत कम है। जैसे मैंने बताया कि ईदी एक इस मुल्क में एक ऐसा इदारा है कि वो हर जगह मुश्किल में पहुंच जाता है और अल खिदमत फाउंडेशन, इसके अलावा एक हाथ जरूर होंगे छोटे, मैं माजरत ख्वाह अगर किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जिस तरह के सिंध में फलाही इदारों ने काम किया, जिस तरह पंजाब में तौसा में केपीके में उसका 2 या 3% से ज्यादा बलूचिस्तान में इस सेक्टर में भी रिलीफ बलूचिस्तान को नहीं मिला। चूंकि बलूचिस्तान में अपने जो वेलफेयर के इदारे हैं वो कोई एक भी ऐसा बड़ा नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा कि वो लोगों का खिदमत करता हो। अपने तौर पे रोड के करीब लोग जाके उन्होंने कोई चंदे इकट्ठे किए, उससे कुछ नहीं बनने वाला। और पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी जिम्मेदारी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज तो मुल्क बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तो इंकलाब लाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने तो मगरबी दुनिया और तहजीब तमद्दुन बना के उनको दे दिया। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने 1% भी फलाई काम में हिस्सा नहीं डाला, नॉट 1%। ये अलमिया और पॉलिटिकल पार्टीज की जो कमजोरी है, मैं सबका कह रहा हूं, वो खुलकर सामने आया कि लोगों को वो रिलीफ नहीं फराहम कर सके। वो फोटो सेशन जरूर हुआ है, वीडियोस बना बना के शेयर जरूर करते रहे, लेकिन लोगों को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, ये भी एक अलमिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना वेलफेयर विंग होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक स्पोक्स पर्सन फॉर बलूचिस्तान। इनकी तकलीफ, इनका तज्जिया आपके सामने है। उन्होंने कहा कि वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए, जहां जहां हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के डेवलपमेंट या फलाही कामों का गैप मौजूद है, वहां पे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज ने, दर्दमंद दिल रखने वालों ने खुद जो कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं आगे बढ़कर काम किया है। लेकिन गुज़िश्ता कई दिहाइयों की लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स को लेके बलूचिस्तान में हमारे पास ये पैरेलल सिस्टम मौजूद नहीं है और इसका फुकदान, इसकी कमी इस वक्त आफत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। आगे बढ़ते जी आपको बताते चले कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने केपी का दौरा किया एक दफा फिर, क्योंकि मुल्क के हर इलाके में ही हम देख रहे हैं इस वक्त आहो बका है और यकीनन मुश्किल में लोग हैं और रेस्क्यू एंड रिलीफ के बाद इनके यहाँ रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन का काम होना है। अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो एक तरह से रेस्क्यू का जो फेज है वो केपी में मुकम्मल हुआ चाहता है। अब आगे किस तरह मामलात बढ़े, लेट्स टेक अ लुक। ये जो विजिट शहबाज शरीफ साहब ने किया है केपी के इलाके में, उसके हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट।
निकाल दे यहाँ से, आपकी मेहरबानी। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह फिक्र न करो, आप परेशान ना हो। सैलाब की तबाहकारियां, वजीर आजम मुतासरीन के शाना बशाना। शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए, सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आप सबकी हुकूमत कायम दायम। मैं इसलिए आया हूँ, आप कुछ इवैक्यूएट हो गए हैं, आपको इंशाल्लाह यहाँ से निकालेंगे, आजकल में खैरियत से निकालेंगे इंशाल्लाह। सवात, कालाम, कांजू और पट्टन में सैलाब मुतासरीन और सयाहों से वजीर आजम ने मुलाकात की। आप कहाँ से आए बेटा? जर्मन से, फॉरेन से। कांजू में वजीर आजम को नुकसानात, रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान किया। मैं बातों पे यकीन नहीं रखता, मैं अमल में यकीन रखता हूँ, और इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि आपकी मुश्किलात को दूर करने के लिए मैं इंशाल्लाह पूरी तरह, हम इंशाल्लाह अपनी पूरी काविशें हम वक्फ करेंगे। वजीर आजम का कहना था, वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, मुतासरीन की बहाली के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुतासर होने वाले आखिरी घर की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जी जनाब, सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए का ग्रांट मुख्तस किया गया है। इसके ऊपर हिकमत अमली सामने आनी है। कई गैप्स हमें अभी भी नजर आ रहे हैं। एपीसी के बाद क्या फैसले किए गए, खुसूसन क्योंकि इसमें पीटीआई की शराकत दारी नहीं है, तो एक सियासी मुखालफत हम वहां से भी उसकी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन क्या ये बेहतरीन हिकमत अमली होगी? इन पैसों की, इस इमदाद की तरसील किस तरह मुमकिन है? फेजेस वाइज इसको कैसे डिवाइड किया गया है? रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए इसमें से कितना इसमें से कितनी रकम मुख्तस होगी, और उसके बाद घरों को बनाना, दोबारा इन लोगों के लिए कोई रोजगार का बंदोबस्त करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन तमाम जरूरियात के लिए पैसे कैसे आगे बढ़ेंगे? लोगों ने इस बात का भी फुकदान कहा कि अगर हम पंजाब की बात करें या केपी की बात करें, दोनों जगह क्योंकि पीटीआई और पीटीआई के इत्तेहादियों के साथ हुकूमती सेटअप प्रोविंशियल लेवल पे मौजूद है, तो वजीर आजम साहब की इनसे मुलाकातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है। व्हाट आर द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क राइट नाउ। लेकिन जी बहरहाल तमाम ही सियासी कुव्वतें, तमाम ही पाकिस्तान के बड़े लीडर्स इस वक्त लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए कोशिश हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एंड वील बी राइट बैक।